जिस दिन तुम ये कॉन्फिडेंट हो जाओ ना कि मैं नोट डाउन करके हाँ भाई अपने दोस्त को नोट देते कि भाई तू पूछ, हम्म। तू मुझसे जो इस नोट पे पूछ सकता है पूछ, उस दिन तुम उस लेवल पे आ सके हो कि अब तुम बुक्स पढ़ सकते हो। फाइनली में यार मेरे को मेडिसिन बहुत पसंद थी, बट मैं पकड़ नहीं पाता था यार कहाँ से शुरू करूँ, वेयर डू आई स्टार्ट। आई ओके। थिंक प्योर द बेस्ट बुक इन द एंटायर एमबीबीएस करिकुलम, इट्स रिटन सो वेल, it is the best book. I remember I completed ortho in like 6 7 days. So one thing which I did very differently than other people was Hi guys, welcome back to the channel. It is my great pleasure to introduce Dr. Karthik Chaudhary sir, an outstanding individual who has achieved a remarkable feat in the field of medicine. He just received an incredible score of All India rank 268 in the highly competitive NEET PG examination, and he is truly an inspiration for all aspiring doctors. It is an honor to recognize and celebrate this great achievement, and I have no doubt that sir will continue to make great contributions to the medical field. So yeah, this is Dr. Karthik Chaudhary sir on the channel, and I hope you guys will learn a lot. hello, how are Good you? evening, sir. Good evening, good evening. First of all, thank you for coming. My pleasure. Sir, Time ही how time is, है यार अब तो। shall we हाँ, start? sure, sure. Yeah, we can start. सर, तो पहले क्वेश्चन के लिए आई नीड थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर कि लाइक व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? Okay, sure. So first of all, the thing is कि I started building up a base as soon as I came into MBBS. Uh, Before MBBS, everything seemed very foreign to me. But as soon as I got into MBBS, मतलब, I felt this is something I always wanted to do. So started from first year, I started studying. I used to enjoy studying. The third semester was the best time of my MBBS. We enjoyed thoroughly. But again, I used to study thoda thoda. So after third semester, then properly started first time ever, started with videos of pathology, of pharma. And this might sound alien to you, but at that time, videos weren't a big thing at all. So making that shift from books to videos was a big decision for me at that Yeah, point of yeah, time. Third year happened, Marrow happened. Some people in our batch took yeah, at yeah, Marrow, yeah. some took DAMS. So my entire preparation has been on Marrow. Almost 96, 97% of it has been on Marrow. Apart from all of that, I've studied some subjects from Bhatia. I'll give you a brief description of what subjects I've done from there. I used to solve question bank, but again, very scratchy. सर फ्रॉम कभी मैरो कर ओनली? लिए, अगेन मैरो, सब मैरो चल रहा है अभी तक। अभी ओके, तक ओके। इंटर्नशिप तक सब मैरो है, कुछ चेंज है ही नहीं। एम्स की कुछ क्लासेस करने गया था इन ऑफलाइन? सेकेंड ईयर आई गेस एंड में, नो ऑफलाइन, बट अगेन दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। आई हैव नेवर बीन एबल टू मेक नोट्स माय एंटायर लाइफ, be it 11th, be it 12th. I've only sufficed on printed notes because I just can't. I have tried. It is not that I haven't tried, and I know it is much better than हम्म। those printed notes. तो थर्ड ईयर हो गया, फाइनल ईयर में तो पता ही है 9 सब्जेक्ट्स आ गए सर पे, तो पढ़ना था सब कुछ, तो सब छोड़ दिया फिर हमने। देयर आर वेरी फ्यू पीपल whom I know कि जो बुक्स पे डिपेंडेंट है एंड दे हैव डन गुड। एट डी को तो क्लिनिकल बुक्स पढ़ने में बहुत मजा आता था, मैंने थ्योरी की तो बहुत ही कम पढ़ी है। हचिंसन, मेरे को पीयूष गुप्ता बहुत अच्छी लगती थी, मतलब आई सर पीयूष थिंक गुप्ता इज पूरी हुआ? मेरी एमबीबीएस की पीड्स ओके। पीडियाट्रिक्स की हम्म। प्रैक्टिकल बुक है पीयूष गुप्ता, और गई है उसकी थ्योरी बुक। I ओके, ओके। think Piyush Gupta is the best book in the entire MBBS curriculum. It's written so well. It is the best book. So मैं डे वन से फिर बैठ गया था इंटर्नशिप में, खूब पार्टी भी करी है, घूमने भी गए हैं, सब कुछ किया है। बट हाई मेड श्योर, अगर मैं तेरे को लिख के भी दूं ना, मेरे अगर इंटर्नशिप 300 दिन की थी तो उसमें मेरे 5 6 दिन होंगे जो जीरो थे। मेरे को याद है मैं गोवा भी गया हुआ था, उसमें मैंने 20 क्वेश्चंस रोज डेली करे थे। सर आई या थिंक अब बल्कि हमारे लिए कन्वीनियंट होगा, लाइक हमारे पेरेंट्स के टाइम पे लाइक एक फोन से आप नहीं पढ़ाई कर सकते थे, बट अब तो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर अस। भाई, फोन पे एमसीक्यू करो, एग्जैक्टली। फोन पे नोट्स है, फोन पे वीडियोस है, एवरीथिंग इज देयर। क्वेश्चन बैंक करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पढ़ो, एक रीड मारो और तभी कर दो। तुम्हारा हाँ। 100% स्कोर करने से ज्यादा बेटर है कि तुम्हें करने वो है, वो हम्म। इम्पोर्टेंट है ज्यादा। हम्म। उसके बाद यार फिर मेरी जीटी, जो फर्स्ट जीटी मैंने दिया था, उसमें मेरे हम्म। 133 करेक्ट थे शायद। हमारे को एक लाइन बोलते थे हमेशा, मैंने जितने भी सीनियर्स वगैरह से बात करी है, कि यार 160 इज द स्कोर टू बी। 160 के बाद तुम्हारे को अपनी मनपसंद ब्रांच मिल जाएगी उस। सो 160 वाज द नंबर इन माय हेड ऑलवेज, कि पहले 160 तक पहुंचता हूँ, फिर अगला टारगेट 180 रखेंगे दिमाग में। ठीक है, तो 133 आए पहले विदाउट अ फर्स्ट रीड। उस टाइम मेरी बस वीडियोस खत्म हुई थी।
मैंने वो जो एक प्रॉपर रीड शुरू होती है ना नीट के लिए, फर्स्ट रीड, उससे पहले ही जीटी दे दिया था। ओके, कूल कूल कूल। बोलते तो है, सारे टीचर्स बोलते हैं द बेस्ट टाइम टू गिव अ जीटी इज नाउ। एंड में देने का जीटी का कोई फायदा नहीं है, डीमोटिवेट ही हो गए। हाँ, तो मैंने जीटी देना शुरू किया। लास्ट आई क्लॉक्ड वाज 175 एंड माय रैंक वाज आल्सो अराउंड 200। एंड नीट में भी देख 171 आई गॉट करेक्ट एंड द रैंक वाज अराउंड 200। सो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही रहता है, कुछ जादू नहीं होता। मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट किया था पेपर तो, कि भाई ये पेपर तो मैं फोड़ गया हूँगा कुछ भी हो जाए। पर फिर भी हाँ, कुछ तो क्वेश्चन गलत होती हैं। पांच सो सर ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया, अब थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है सर। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला ये, एंड यू वर प्रिपेयरिंग व्हाइल योर इंटर्नशिप वाज गोइंग ऑन। तो सर आपने एकेडमिक्स को एंड योर प्रिपरेशन को आपने इंटर्नशिप से कैसे लाइक मैनेज किया? मेरे को तो यार बहुत मजा आता था इंटर्नशिप में। मतलब मैं बर्डन की तरह बहुत ही कम पोस्टिंग में जाता था, तो इंटर्नशिप में बहुत सीखा यार। मतलब दैट ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट टू अ डॉक्टर, कि अब आप किसी भी ओपीडी में बैठ सकते हो, बेसिक ओपीडी चला सकते हो, दैट हैपेंड थ्रू आउट इंटर्नशिप। अगेन, दिल में बहुत बार आता था कि यार अब नाइट ड्यूटी हो गई, अब 3 दिन खराब होंगे, और उसमें वो चीजें होती हैं। बट हाँ, अगर आप अपनी इंटर्नशिप थरोली एंजॉय करोगे और आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज होगी कि भाई सो लिए, ड्यूटी कर ली, अब पढ़ना है, बस 3 चीजें रखो दिमाग में। और हाँ, बर्न आउट आता है तो पार्टी वार्टी कराओ, घूमाओ, वो सब चलो चलता रहेगा। बट अगर आपका गोल है, फोकस्ड हो आप, तो इंटर्नशिप इज नॉट दैट बिग अ डील, हो जाता है सब। लाइक वर देयर एनी सब्जेक्ट्स दैट यू फाउंड डिफिकल्ट, एंड लाइक आपने उनसे डील कैसे किया? पीएसएम यार, पीएसएम तो मेरी दुश्मन रही है शुरू से ही। और माइक्रोबायो आई गेस, क्योंकि मैंने एक बहुत इलेबोरेट सोर्स से पढ़ा था, जो शिविका मैम के नोट से, तो मेरे को डर लगता था यार कैसे पढ़ूंगा इतना सारा, इतना तो पूछते भी नहीं है, क्यों इसमें से मैं हाँ। पिकअप कैसे करूँ चीजें। फाइनली में यार, मेरे को मेडिसिन बहुत पसंद थी, बट मैं पकड़ नहीं पाता था यार कहाँ से शुरू करूँ, वेयर डू आई स्टार्ट। तो मैं फिर क्या करता था, मैंने मेडिसिन को एज अ सब्जेक्ट कभी कंसिडर ही नहीं किया। मैं सीवीएस सीएनएस ऐसे सोच के पढ़ता था कि चलो अब यूनिट वाइज। सीवीएस पढ़ते हैं, हाँ अब सीएनएस पढ़ते हैं, कभी मेडिसिन को एज अ सब्जेक्ट कंसिडर ही नहीं किया, तो सब ईज आउट हो जाती थी उसके बाद। ओके सर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज आर फॉर द पीजी एग्जाम? वेरी इंपॉर्टेंट यार, पीवाईक्यूज एंड every GT is very important, much 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 more important than the Q bank is। मेरे ख्याल से तो सबसे पहले तो PYQs ही करनी चाहिए। मतलब आपका पूरा क्यू बैंक एक तरफ है, और टारगेट रेट, मतलब जो हिट रेट PYQs का है वो अलग ही है। टॉपिक्स का, क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली रिपीट बहुत ही कम होते हैं, पर यार टॉपिक्स तो हद से ज्यादा। सर ऑल्सो लाइक माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइक वाइल अटेम्प्टिंग द एग्जाम, टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब, आर देयर एनी टिप्स और ट्रिक्स लाइक जो आप शेयर करना चाहोगे? नीट का पेपर बहुत लेंदी था। द रूल वाज 70 70 80, या इट वाज 70 70 60, या इट वाज दैट जो मैं फॉलो कर रहा था। 3.5 घंटे का पेपर है। 70 इन द फर्स्ट आवर, 70 इन द सेकंड आवर, 60 इन द थर्ड आवर। हाफ एन आवर इज आवर विंडो पीरियड, जिसमें हम अपने जो छोड़े क्वेश्चंस हैं वो रिव्यू क्वेश्चंस करेंगे। सर लाइक फॉर द बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू यू टू रिवाइज दिस वास्ट अमाउंट ऑफ सिलेबस? देख, मैं सबसे अच्छा होता है कि इंटर्नशिप में ना बहुत फ्रेश फ्रेश फाइनल ईयर करके आते हो, तो फाइनल ईयर को तो 3 महीने के लिए भूल जाओ। ठीक है, ओके। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें याद आ जाएगा फाइनल ईयर। ओके। ठीक है, फाइनल ईयर तुम्हें याद आ जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद फर्स्ट सेकंड ईयर। और मेरी हमेशा स्ट्रैटेजी होती थी कि मैं 2 सब्जेक्ट्स करता था, क्योंकि एक से मैं बोर हो जाता था। तो दो या। सब्जेक्ट्स करो, एंड इन टैंडम करते रहो। कुछ टॉपिक कर लिया, 3 4 घंटे ये पढ़ लिया, अगले दिन 2 3 घंटे वो पढ़ लिया। एनाटमी बायोकेम कर लो, या एनाटमी एक छोटा टॉपिक उठा लो, एनाटमी के साथ अपनी एफएमटी उठा लो। ठीक है, तो ये सब करो, और अपने पूरे पूरे थरली नोट्स को पढ़ो, साथ में क्यू बैंक्स निपटाओ अगर नहीं करे हैं तो। क्यू बैंक्स खत्म करो, कर लिए तो रॉन्ग्स देखो बस, बस रॉन्ग रॉन्ग को रिव्यू करो। तो वन थिंग विच आई डिड वेरी डिफरेंटली देन अदर पीपल वाज कि सब लोग बोलते हैं इंटर्नशिप में कि आपके 3 रिविजन एग्जाम से पहले हो जाने चाहिए। ठीक है, 3 या 4 रिविजन, वो कुछ तो 5 भी करते हैं। कोई मतलब कोई मानेगा भी नहीं, मेरा जो फर्स्ट रिविजन था ना 19 सब्जेक्ट्स का, वो मेरा 28th या 27th जैन को खत्म हुआ था, एंड मार्च में एग्जाम था। सर लाइक मुझे नहीं पता ये वीडियो औरों को हेल्प करे ना करे, बट मुझे पता है वीडियो मुझे बहुत हेल्प करेगी। एंड सर हाँ भाई, बिफोर वी एंड द वीडियो, लाइक व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द फ्यूचर नीट पीजी एस्पिरेंट्स?
यार एक साल लगा दो अपनी पूरी जान, क्योंकि दिस इज नॉट व्हाट योर करियर इज अबाउट. योर करियर इज फार अहेड एंड much more greater than this exam is. There is a lot of stupid things that you'll have to memorize, you'll have to read. Just do it for the sake of this exam. Because अगर आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तभी आप और अच्छा सीख पाओगे. ठीक है. हम्म. तुम रोज गाली दोगे कि यार ये कौन पूछता है यार, पर पूछते हैं तो पूछते हैं, करना है तो करना है. पूरी जान लगा दो एक साल में, हाफ हार्टेडली मत करो. तुम्हें नहीं पढ़ना, कुछ मत करो, पूरे साल ऐश मारो, अगले साल पढ़ो. वो बेस्ट तरीका है. ये होना चाहिए कि यार अच्छा, इस ये सर आएंगे अभी आधे घंटे में राउंड लेने, इतने में तो मैं 2 मॉड्यूल खत्म कर दूंगा. फटाफट कोने में जाओ, मॉड्यूल सॉल्व करके आ जाओ. थैंक यू सो मच सर. बहुत थैंक यू सो हेल्पफुल. मच भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. And yeah, guys, this was Dr. Karthik Chaudhary sir on the channel. And I hope आप लोग को भी मेरी तरह बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. Like I would like to sir wish you all the best for the INICT exam. And थैंक यू सो मच. let's hope कि आपकी वहाँ भी बहुत अच्छी रैंक है and we shoot more videos like this for helping the people. And yeah, thank you. श्योर श्योर. Thank you so much, sir.